हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए द हिंदू ट्यूटोरियल का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं आपका। और आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, और जीमेल पे हमें आप कोई फीडबैक, कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता गूगल के ऊपर आपको सर्च कैसे करना है तो गूगल के ऊपर सिंपली आपको टाइप करना था हिंदू ट्यूटोरियल बाय राजेश। और जैसे ही आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, वैसे ही हमारी वीडियोस आपको शो होने लगी, तो आप यहाँ से भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, मोटिवेशन कोट। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. तो चलिए जानते हैं आज का आर्टिकल क्या है। एट द हाई टेबल, यानी कोई ऐसी बात हो रही है जो बहुत ग्लोबल स्तर पे बात चर्चा चल रही है। तो जैसे आपको पता होगा, जो यूएनएससी का इलेक्शन था उसमें भारत को अस्थायी तौर पर सदस्य नियुक्त कर लिया गया है। तो उसी के संदर्भ में आज का आर्टिकल है। तो चलिए वोकैब की ओर मूव करते हैं। तो आज की पहली वोकैब है वैल्यू। वैल्यू मतलब होता है महत्व। The regard that something is held to deserve the importance, worth, or usefulness of something. UNSC, the United Nations Security Council, is one of the six principal organs of the United Nations charged with ensuring international peace and security, recommending the admission of the UN members to the General Assembly and approving any changes to the UN Charter. Diplomatic यानी कूटनीतिक, having or showing an ability to deal with people in a sensitive and tactful way. Victory मतलब विजय हासिल करना, an act of defeating an enemy or opponent in a battle, game or other competition. Push आगे बढ़ाने वाला, move forward by using force to pass people or cause them to move aside. Reform मतलब सुधार, the action or process of reforming an institution or practice. Contestant मतलब प्रतियोगी या प्रतिभागी कह सकते हो, a person who takes part in a contest or competition. Majority मतलब बहुमत, the number by which votes for one candidate are more than those for all other candidates together. Highlight मतलब उसके ऊपर मेन फोकस करना, draw special attention to. Peace keeping शांति की स्थापना करना, the active maintenance of a truce between nations and communities, especially by an international military force. Comprehensive यानी large scale पे व्यापक, of large content or scope, wide ranging. Convention मतलब सम्मेलन, a large meeting or conference, especially of members of a political party or a particular profession or group. Terrorism मतलब आतंकवाद, the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians in the pursuit of political aims. Tenure मतलब कार्यकाल, a period for which an office is held. Diplomacy कूटनीति, the profession, activity or skill of managing international relations, typically by a country's representatives abroad. Resist मतलब विरोध करना किसी चीज का, struggle or fight back when attacked. Multilateral यानी बहुपक्षीय, agreed upon or participated in by three or more parties, especially the governments of different countries. Multilateralism यानी बहुपक्षीय, इसका भी मतलब है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा. The principle of participation by three or more parties, especially by the government of different countries. Strengthen यानी वृद्धि करना, make or become stronger यानी मजबूत बनाना. Contour मतलब आकृति, an outline representing or bounding the shape or form of something. Geopolitical यानी भू राजनीतिक, relating to politics, especially international relations as influenced by geographical factors. Temptation प्रलोभन, the desire to do something, especially something wrong or unwise. मतलब इच्छा का ऐसा होना कुछ गलत काम करने के लिए, यानी लालच का आना. Polarize ध्रुवीकरण
Divide or cause to divide into two sharply contrasting groups or set of opinions or belief, यानी दो भागों में बांट देना। एस्पायर यानी महत्वाकांक्षा करना, डायरेक्ट वंस होप और एम्बिशंस टुवर्ड्स अचीविंग समथिंग, किसी चीज को हासिल करने की आकांक्षा। तो ये थी हमारी आज की वोकैब। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। हमारे जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल क्या दिया गया, लिखा गया एट द हाई टेबल, इंडिया मस्ट अडॉप्ट वैल्यू बेस्ड पोजीशन एट द यूएनएससी एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर नेशंस। इंडिया को अपनानी चाहिए क्या चीज, वैल्यू बेस्ड पोजीशन को, यानी जो महत्व देती है पोजीशन उसको, कहाँ पे, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और बननी चाहिए आवाज गरीब राष्ट्र की और कमजोर राष्ट्र की। India's election to the UN Security Council as a non-permanent member is a significant diplomatic victory for the country. इंडिया का इलेक्ट होना, वहाँ पे चुनना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए अस्थायी सदस्य के तौर पे, यह बहुत बड़ी हमारी कूटनीतिक जीत है राष्ट्र के लिए। Which has long been pushing for reforms at global institution, जो काफी लंबे समय से हम क्या कर रहे थे, अपने जो हमारे कदम थे उसको पुश कर रहे थे कि सुधार के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में जो जरूरत है। द विक्ट्री वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड एज इंडिया, जो विक्ट्री है यह अप्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि वाज इंडिया जो है केवल अकेला कंटेस्टेंट था एशिया पैसिफिक सीट से, बट लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो भारत की विदेश नीति है उसकी स्थापना टुक नो चांसेस एज द इलेक्शन वुड बी डन, कोई चांसेस नहीं थे कि जो इलेक्शन होंगे कैसे, बाय सीक्रेट बैलेट एट द यूएन जनरल असेंबली, एकदम गुप्त तरीके से मतदान जो होंगे, और उसमें भी क्या जो था मेजोरिटी की जो हमें जीत के लिए चाहिए, 2/3 हमें वोट चाहिए होते हैं जीतने के लिए वहां पे। इंडिया सिक्योर्ड, लेकिन इंडिया ने हासिल कितने किए हैं, सीट विद 184 वोट्स, 184 वोट हासिल किए हैं, इन द 193 यानी 193 वोटों में से 184 वोट हासिल किए हैं, यानी केवल 9 वोट हमें नहीं मिल पाए। स्ट्रॉन्ग जनरल असेंबली में मैक्सिको, नॉर्वे एंड आयरलैंड, जो मैक्सिको है, नॉर्वे और आयरलैंड है, वर ऑल्सो इलेक्टेड, यानी वो भी साथ ही साथ चुन लिए गए हैं एज ए नॉन परमानेंट मेंबर्स, अस्थायी सदस्य के तौर पे। वाइल मैक्सिको, जबकि मैक्सिको वॉन द लैटिन अमेरिकन सीट अनकंटेस्टेड, और मैक्सिको ने क्या जीती है, लैटिन अमेरिका की सीट जीती है अनकंटेस्टेड। नॉर्वे एंड आयरलैंड, जो नॉर्वे है और जो आयरलैंड है, इमर्ज विक्टीरियस फ्रॉम ए थ्री वे कंटेस्ट फॉर द वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप सीट, और जो नॉर्वे और आयरलैंड ने क्या जीती है, थ्री वे कंटेस्ट जीता है प्रतियोगिता वेस्टर्न यूरोप से और अदर ग्रुप सीटों से। कनाडा, लेकिन कनाडा फेल हो गया है टू विन एनफ वोट्स इन दिस ग्रुप, उसको इतने वोट नहीं मिले जितनी जरूरत थी जीतने के लिए उसको इस ग्रुप में। नाइदर केनिया नॉर डिजिबाउती which were contested the seat from Africa won a 2/3 majority, और ना ही केनिया और डिजिबाउती को जीत मिली है, जिन्होंने कहाँ से लड़े थे, अफ्रीका से वो लड़े थे। दे विल फेस अनदर वोट, और उन्हें क्या फेस करना पड़ा, एक अनदर वोट भी। इंडिया सॉट द सपोर्ट, और भारत को क्या जरूरत है अभी, सपोर्ट की मांग की है मेंबर कंट्रीज से, बाय हाईलाइटिंग कि मेन ध्यान देके इट्स कमिटमेंट टू मल्टीटेरिज्म एंड रिफॉर्म्स, जो बहुपक्षीय है उसका बहुपक्षवाद है और सुधारों के लिए, तो भारत को क्या जरूरत पड़ेगी, वहां पे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो चाहिए भारत को। अहेड ऑफ वोट, और मतदान से आगे, इंडिया हैड लॉन्च, इंडिया ने क्या है लॉन्च किया था एक कैंपेन ब्राउशर, यानी जिसके अंदर डिटेल्स होती है कि हम ये काम करेंगे, विच हाईलाइटेड, और जो फोकस करते थे उसकी डिमांड को, ट्रांसपेरेंसी का इन मैंडेट, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उन आदेशों में जो यूएन देता है शांति स्थापित करने के मिशंस के लिए, एंड पुश फॉर द इंडिया, और उसको बढ़ावा देना जो इंडिया लेड कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन, यानी व्यापक स्तर पर एक बातचीत होना किसके ऊपर, इंटरनेशनल टेररिज्म यानी आतंकवाद के ऊपर, एंड कॉल फॉर जॉइंट एफर्ट, और बुलाना संयुक्त एफर्ट्स को यानी प्रयासों को करना, फॉर यूएन रिफॉर्म के लिए यानी यूएन में सुधार के लिए, एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका बढ़ावा करना सिक्योरिटी काउंसिल का, ए न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, जैसे एक न्यू ओरिएंटेशन जो कि रिफॉर्म्स है सुधार होंगे मल्टीलेटरल सिस्टम यानी बहुत लार्ज स्केल पे, एज लेड आउट बाय एक्सटर्नल
जो कि कहा गया, रखा गया वहाँ पे सदन में, किसके द्वारा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो एस जयशंकर जी हैं उनके द्वारा। वुड बी इंडियाज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये भारत का एक उद्देश्य रहेगा ड्यूरिंग द 2 ईयर टेन्योर में, जो 2 साल का कार्यकाल है उसका भारत का, उसमें डेट विल बिगिन नेक्स्ट ईयर, और जो स्टार्ट होगा कब से, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा हमारा कार्यकाल। अचीविंग दिस वुड, और इस चीज़ों को हासिल करना वो डिपेंड करता है हाउ, कैसे इंडिया विल कंडक्ट डिप्लोमेसी, कि इंडिया कैसे कंडक्ट करता है अपनी कूटनीति को इन द ग्लोबल बॉडी, वैश्विक स्तर पे, बिल्ड अलायंसेस, और वहाँ पे कैसे उसके रिलेशनशिप होते हैं, क्या दोस्ती यारियाँ होती है उसकी वहाँ पे, एंड रेज इश्यूज, और कैसे वो मुद्दों को उठाता है, कौन से मुद्दे, डेट गो बियॉन्ड, और जो कि बाहर से हैं, जो उसकी कंट्रोल में नहीं है, जो बियॉन्ड है, यानी थोड़ा कह सकते हो अगेंस्ट में है या फिर अनफेवरेबल है, किसके, द इंटरेस्ट ऑफ द बिग फाइव, जो उनके इंटरेस्ट है, कौन, जो पहले से बिग फाइव हैं, जो 5 बड़े राष्ट्र हैं उसमें, उनके थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्लिक्ट करे उसमें इंटरेस्ट उनका, राय मतलब। इंडिया हैज लॉन्ग बीन ऑफ व्यू, और इंडिया का काफी लंबे समय से ऐसा मत रहा है व्यू, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी, जो स्ट्रक्चर है यानी जो उसका ढांचा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, डजंट रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी, वो हमें प्रदर्शित नहीं करता जो असलियत है 21वीं सदी की वो। इट हैज ऑल्सो, साथ ही साथ, गॉट इंक्रीजिंग सपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्रीज फॉर इट्स पुश फॉर रिफॉर्म्स, और साथ ही साथ उसे जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की, सपोर्ट की यानी मदद की, अपनी जो मेंबर कंट्रीज है उनकी, किस लिए, जो उसके सुधार हैं भारत ने जो सोचे हैं उसमें रिफॉर्म्स के करने के लिए, उसके लिए। बट द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन जो 5 स्थायी तौर पे जो सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, हैव रेसिस्टेड दीज अटेम्प्ट्स, लेकिन जो रोकते हैं इन अटेम्प्ट्स को, जिनको इन अटेम्प्ट्स का जो कोई करता है तो उसका विरोध करते हैं। द कोविड 19, जो कोविड 19 जो पेंडेमिक है यानी जो महामारी है, हैज ऑलरेडी शेकन अप द ग्लोबल ऑर्डर, उसने पहली तरीके से ही क्या, जो ग्लोबली पूरी हर चीज को एक तरीके से तहस नहस कर दिया, सब कुछ अनस्ट्रक्चर सा हो चुका है, सब कुछ अनबैलेंस हो चुका है। एंड शार्पन द राइवलरी बिटवीन द यूएस एंड चाइना, और बढ़ा दी है उसने एक तरीके से नोक झोंक या फिर दुश्मनी यूएस और चाइना के बीच में। इट हैज ऑल्सो ओपन अप, और उसने एक नई ओपन की है क्या, फ्रेश डिबेट ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीटेररिज्म एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की, यानी बहुसंख्यवाद की और बहुपक्षीय इंस्टीट्यूशंस की। इन दिस कंटेस्ट द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आर मैनी, भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, चुनौतियां भी होंगी, तो उनका भारत को भी सामना करना होगा इसमें। द सिक्योरिटी काउंसिल, और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, मल्टीलेटरल यानी बहुपक्षीय डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वेयर द कंटेंट ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स आर ऑफन ड्रॉन, जहाँ पे जो ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स है, जो आकृति है जियोपॉलिटिक्स की यानी भू राजनीति की, वहाँ पे क्या ऑफन ड्रॉ हो जाती है। इंडिया शुड अवॉइड, और भारत को क्या है, अवॉइड करना चाहिए यानी बचना चाहिए, किससे, प्रलोभन से, टेम्पटेशन ऑफ टेकिंग साइड्स, किसी की और साइड लेने के, एट ए टाइम व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल इज गेटिंग मोर एंड मोर पोलराइज, जब सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो ज्यादा से ज्यादा क्या ध्रुवीकरण की ओर आकर्षित होती है, तो भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी की खास फेवर नहीं करना चाहिए। टू सर्व इट्स इंटरेस्ट, और जो उसके इंटरेस्ट है, एंड पुश फॉर इट्स एजेंडा, और जो उसका एजेंडा है उसको बढ़ाने के लिए, फॉर मल्टीलेटरिज्म, बहुसंख्यकवाद को, बहुपक्षीय को, एंड रिफॉर्म, और सुधार को, इंडिया शुड अडॉप्ट, इंडिया को अपनानी चाहिए क्या, वैल्यू बेस्ड पोजिशन को, डेट आर नॉट ट्रांजेक्शनल, और जो किसी लेन देन के ऊपर निर्भर ना करे, एस्पायर फॉर लीडरशिप, और जो उसकी महत्वाकांक्षी है लीडरशिप हासिल करने की, ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल, एंड बी द वॉइस ऑफ द वीकर सेक्शन, और बननी चाहिए आवाज उन कमजोर राष्ट्र की और गरीब राष्ट्र की जो अपनी आवाज उठा नहीं पाते हैं। तो ये था आज का आर्टिकल, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, काफी कुछ नई चीजें आपको सीखने को भी मिली होंगी। तो
आप लिए अगर आपको नहीं पता आप गूगल पे कैसे सर्च करके आप हमारी वीडियोस को देख पाओगे, तो सिंपली आपको गूगल के ऊपर टाइप करना था हिंदू ट्यूटोरियल बाय राइस। जैसे आप टाइप करोगे सर्च करेंगे वैसे आप हमारी वीडियोस पे पहुंच जाएंगे, गूगल पे आपको लिंक शो होने लगेंगे। तो वैसे आप हमारे चैनल पे आगे कोई भी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और फिर भी अगर आपको मन में कोई सुझाव है, कोई फीडबैक देना है आपको, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमें हमारी मेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। तो आज की इतना ही। तो धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।